जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो गाइस, दिस साइड अखिलेश रामकृष्णा राय। और आज जो है वो प्रोफाउंड राइटर्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर है। जैसा कि मैंने सोचा कि हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है हम सबको, या बहुत लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या करते हैं, प्रोफाउंड राइटर्स क्या है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ओवर टू यू प्राची मैम। Thank you, sir. Thank you, sir. Very warm greetings to everyone. Good afternoon. So before we people are going to give it a proper start, so I would like to start this mega event today with my some of the self-written lines. So I need all of your attention here. कुछ lines लिखी हैं मैंने आप सबके लिए, जो मेरे personality को reflect करती हैं. So that I'm going to share with you all. An epitome of patience I am. An epitome of patience I am. A reflection of positivity I am. Infused with life forever. Infused with life forever. I do not fade. I do not give up ever. I have my own shine. I have my own unique aura. Whatever I touch, I make it gold. Whatever I touch, I make it gold. I polish myself to new forever. I never let it go old. I polish myself to new, for I never let it go old. Always elated, I remain happy. Always elated, I remain happy. Blessed with a name, that means productivity. I am blessed with a name, that means productivity. My name is Prachi. So this is the name and this is the personality I reflect. My name is Prachi. Hello, namaskar, adab, sat sri akal. I hope you all guys are rocking. You all are safe at your respective places. I am Prachi Gakhar, the very host of Profound Writers Community. आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक शानदार मेगा इवेंट के साथ, जो है Profound Writers Get Together on the special occasion of Independence Day. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी एक वर्चुअल इवेंट में साथ जुड़े हैं, and I am very much sure that we are going to make it a grand success. So once again, I welcome you all, me and Akhilesh ji, from the entire team of Profound Writers Community. A very special day. We all savor the taste of freedom in the air. So let me just start with the journey of Profound Writers. Let me just introduce what this great community is all about. So it is a global writing community of writers. Profound Writers is a prominent writing community, well established on historical date, that is 8th of March 2020, by our honorable CEO, Mr. Ranveer, with a dream of providing a platform for budding and aspiring writers to improve their writing skills. Profound Writers is touching the sky every passing day with new achievements. So on very this note, I would like to congratulate Profound Writers, the entire team, as we have started our own publication house. And many writers have also even started submitting and publishing manuscripts for the publication of their books. So once again, congratulations for starting our own publication house. Profound Writers has touched the mark and surpassed the magic number more than 2,000 people in a very short span of time. This is a great achievement for any organization like us. Profound Writers is consistently grand events, grand competitions, just like Mushaira, Penning Pearls, which was recently held. And moreover, now it has started its contest on new platforms like Quora, Instagram, on various occasions like Raksha Bandhan is approaching. So every now and then, Profound Writer is ready to encash the new opportunities, new occasions to make it a grand success. And every day we are into
starting and implementing new themes, new concepts. As a prominent WhatsApp writing community, we all are privileged to assemble the passionate and exuberant writers from all over the India in all the categories, being it the novice writers, beginners, professionals, expert writers, mature writers. Every kind of writer is welcome here to polish their skills and to learn, and learn. The writers are given daily writing challenges, various themes, various formats to try for, and many more things. Later, which are being reviewed, are expert teams of volunteers. We at Profound Writers consist of experienced candidates who are working as volunteers to judge our writing skills, the newcomers' writing skills who are joining as the writers, along with the literary and grammatically rectifications, so that they can help our writers to improve on their weak areas and to express their notions through the art of writing, which is one of its own kind. Profound Writer is doing wonders on YouTube, platform, podcast, Quora, Najoto, and Instagram and whatnot. We are everywhere, everywhere. Profound Writers is expanding, it's mushrooming like anything by leaps and bounds. And my good wishes are always with Profound Writers. And I'm blessed and privileged to be a part of such a big community. I am also growing each passing day here. It is bent upon to touch new milestones in near time, coming up with flying colors. Let me introduce you all to the lovely people, the respected heads of Profound Writers organization. Dr. Randhir sir, who is the CEO of Profound Writers. Mr. Mohit sir, who is a human resource manager. Mr. Nitish sir, who is the MD managing director. Ms. Artika, the controlling head. Ms. Shreya, who is the coordinating chief. And I would like to thank Mr. Akhilesh Raiji, who is a YouTube head, who is every now and then planning such grand events, clubbing with all of his team members. So over to you, Akhilesh ji. Thank you so much, ma'am, for such grand opening of this event. Actually, I'm riding right now, so I stopped by. Okay. कुछ लाइंस हैं जो मैं अपने जो राइटर्स, जो हमारे मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ एक कुछ लिखे, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. Sometimes a defeat is nothing but a fear inside us, which keeps on hopping out of our mind just to make us weak. So I hope ये फ्रेज जो है वो आप लोगों को समझा रहेगा. एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत जिंदगी में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत से ऐसे टाइम आते हैं जब इंसान सोच नहीं सकता है कि वो, या एक तो पहली बात होती है कि सोचने पे मजबूर होता है, पर उसका दिमाग इतनी तेजी से नहीं चल सकता, उतने कॉन्शियसली नहीं चल सकता कि वो सोचे, या कुछ के साथ कुछ हो जाता है. पर उसके उल्टे कंडीशन देखे जाएं तो ऐसा भी होता है कि आपके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है. तो ये बस छोटा सा एक मोटिवेशन था मेरे प्यारे भाई बहनों, राइटर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एल्डर्स जो हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मेरे जो एल्डर्स हैं और जो मेरे जो मेंटोर हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ दिल से. और आज के दिन की सभी को बधाइयाँ देता हूँ. जैसा कि इंडिपेंडेंस डे, ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो आज के दिन हमारा पूरा भारत राष्ट्र जो है वो आजादी का जश्न मना रहा है. जैसा कि आज ही के दिन 2 देश आजाद हुए थे, और 26 जनवरी भी आती है. मैंने एनसीसी किया है. एक एनसीसी कैडेट के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त एक त्योहार जैसे होते हैं. जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए दिवाली और ईद वगैरह जो है वो त्योहार हो जाते हैं, होली, दिवाली, ईद त्योहार हो जाते हैं. तो एक देशभक्त, सच्चे देशभक्त के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी भी एक त्योहार होता है, जिस दिन वो खुद को सजाते हैं. आप आर्म फोर्सेस को देख लेंगे, आप यूनिफॉर्म सर्विसेज को देखेंगे, वो सब अपने आप को तैयार करते हैं, वो अपने गहने लगाते हैं, स्कार्फ पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, तैयार होंगे, अपने बैजेस लगाएंगे, अपने रैंक्स लगाएंगे, अपने अपने आर्मरी के साथ तैयार हो जाते हैं.
सिर्फ एक दिन अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर के सामने वो इतने अच्छे से तैयार होते हैं कि अपना ऑलमोस्ट दे देते हैं सिर्फ एक यूनिफॉर्म और अपने शरीर को तैयार करने में, अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन करने में, कि सामने वाला देख करके कुछ उनसे सीखेगा। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से कि 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सिर्फ एनसीसी वालों या दूसरे सर्विसेज या सोशल सर्विसेज या फिर यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंस इसलिए है कि इसी दिन पूरा भारत राष्ट्र जो है वो आजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। खैर अंग्रेजी तो नहीं छूट पाए हम सबसे उनके चंगुल जरूर चले गए, लेकिन उनसे जो कुछ चीजें थी जो हम नहीं छोड़ सकते हैं और उनके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि ठीक है स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की अगर भाषा नहीं आ रही है तो वो अपने आप में एक शर्मनाक बात होती है। और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का आपको कल्चर पता होना बहुत जरूरी है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रीजन, वहाँ का क्लाइमेट, हर चीज आपको पता होना चाहिए कि आप किस राष्ट्र में रहते हैं। तो ओवर टू यू पासीराम। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मेरा खुद का यही मानना है कि स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि स्वतंत्रता दिवस आया, इंडिपेंडेंस डे आया, 15 अगस्त आया, हमने अपनी सोसाइटी में एक झंडा फहरा दिया और जो यंगस्टर्स हैं अपने उन्होंने बॉडी पे टैटूज लगा दिया और अपने बाइक्स पर, अपनी गाड़ियों पर फ्लैग लगा के हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग पिज्जा हट पे जाके कॉम्बो पैक्स में हम लोग वैल्यू मील्स मंगा रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का इस तरह से। सो दिस इज नॉट ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे। पर्सनली आई फील दैट फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, सो फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर मैं कहती हूँ कि मैं फ्री हूँ, then I know that I must be responsible for that freedom also. अपनी फ्रीडम की जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी है, हम सबको खुद उठानी है। फ्रीडम अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी लेकर के आती है कि आपको उस फ्रीडम को अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह से निभाना है। You have to be source of inspiration for others. If you are free, so you are free for conducting good things in your life, for conducting good deeds in your life, for showcasing humanity, for contributing for our society in a positive manner. That I know, that I understand, that is truly the meaning of freedom. So freedom, if I talk about earlier when we were slaves under Britishers, we had a clear enemy, we had a clear opponent against us. हमें पता था कि ये हमारे दुश्मन है, हमें इनके खिलाफ लड़ना है। हमारे एफर्ट्स थे, कई आंदोलन चलाए गए, बहुत सारा संघर्ष हुआ, बहुत सारे बलिदान दिए गए, and on concrete basis we got that freedom because we knew that very particular time that we are having those people as our opponents. लेकिन आज के इस contemporary time में when we all are free, हम सभी free हैं, हम सभी के पास freedom है, हम सब उस freedom को enjoy करते हैं। But tell me from the bottom of your heart, all who are present in this meeting, क्या आप सभी अब भी free हैं? Are you all free? This is my question to everyone. Everyone is today busy, involved. We are mad in the rat race of earning money. We are just running after the materialistic comforts. So हम लोग कहाँ पे free हैं? हम में से कोई भी free नहीं है. We are not free at all. We are all clutched. हम सब clutched हैं. हम सब एक sphere के अंदर हैं. We all are bound. We are running after money. We are clutched in the fantasy of money, in the rat race, and we are again, you can say, very common example I would like to give you. इंटरनेट का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज सभी हम लोग एक कॉमन एग्जांपल अपने फोन के स्लेव्स हैं. We are not controlling our mobile phones. Our mobile phones are controlling ourselves. We are slave. There are 6 people in a family, but they don't find that intimacy to talk to each other. Intimacy has gone. Intimacy has completely vanished. So what I call, this is all a hollow relationship, a web of hollow relationship,
सो फ्रीडम, आई डोंट थिंक हम लोग आज भी फ्री हो के भी हम लोग फ्री नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि जो हमारे एनिमीज हैं वो हमारी खुद की कमियां हैं, हमारी खुद की शॉर्टकमिंग्स हैं, जो हमें दिखती नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में हमें वो नजर नहीं आता है, बट आज भी हम फ्री नहीं है। दिस इज माई नोशन। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू सम ऑफ द मेंबर्स आउट हियर। सो सर आप नाम बुलाएंगे वन बाय वन, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। सर बताइए। शुरू करें मैम? यस सर, बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल ठीक सर। है, तो पहला सवाल प्रिया जी से ही करते हैं। ओके सर। सर आप करेंगे मैं करूं? बताइए। आप करिए, शुरू करिए। ओके सर। प्रिया, वेलकम टू द इवेंट। जी यस प्रिया, वेलकम टू द इवेंट। थैंक यू मैम। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, आप इंडियन अटायर में हैं, आप साड़ी में हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप साड़ी में हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। गुड गुड गुड। मैम सर ने बोला नहीं नहीं सर ने नहीं बोला है, ये तो आपको भी समझना चाहिए। देखिए आज मैंने बिंदी भी लगाया है, ठीक है, तो हमारा इंडियन कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो कोई कल्चर हमारे सामने नहीं टिकता है। आवर कल्चर इज द बेस्ट। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आई वुड अप्रिशिएट आप अपने रियल लाइफ में भी व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग सेंस, तो जितना आप इंडियन अटायर ले सकते हैं तो इट्स गुड, वेरी नाइस। सो प्रिया, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, प्लीज शेयर योर जर्नी विद प्रोफाउंड राइटर्स सो फार। अभी तक का जो जर्नी आपका प्रोफाउंड राइटर्स के साथ है, प्लीज वो शेयर कीजिए हमारे साथ। मैम ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई दिसंबर में। 5 Okay. दिसंबर मैंने ज्वाइन किया था। आदित्य ने मुझे ज्वाइन कराया। मैं बहुत उसको थैंक बोलना चाहती हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कम्युनिटी पे ज्वाइन कराया। ऐसे ही मेरा कुछ दिन गुजरे, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड डिजाइनिंग सीखी। ठीक है। उसमें सब लोगों ने मेरे इतना, मतलब मुझे आता नहीं था बैकग्राउंड डिजाइनिंग एक्चुअली, तो बैकग्राउंड डिजाइनिंग में सब ने मुझे हेल्प किया, सब ने रिव्यूइंग सिखाई। मेरे राइटअप्स ना और एनहांस हो गए। मैं इंग्लिश में नहीं लिखती थी, मेरा बेसिकली हिंदी में होता था पहले, या तो मैं ऐसी चैट लैंग्वेज में लिखती थी, तो इंग्लिश में मेरा नहीं होता था, तो इंग्लिश में मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ। उसके बाद जनवरी निकल गया, फरवरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको लीव किया PW। लेकिन फिर भी मतलब हार्ट से मेरा गया नहीं, तो मैंने उसको लगा रहा मेरा। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं से ऐसा था कि नहीं आने दे रहा, मेरे को कहीं से जाना ही है, कितना रोक लेंगे भैया, मेरे को कहीं ना कहीं से कर दो। गुड 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 स्पिरिट, गुड स्पिरिट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहिए। गुड, चलिए। और अभी भी ऐसा है कि मतलब मेरा PW के बिना कुछ होता नहीं है। सब बोलते हैं कि तू PW के अलावा कुछ बोलेगी तो बात कर, मतलब अपने मन का। तुम्हारा PW के अलावा कुछ चलता है, हमको भी ज्वाइन करा दो। 2 लोगों ने ऐसे ही मतलब मेरे से बोल के ज्वाइन करवा लिया खुद। तो ऐसा है कि सब कुछ सीखा मैंने। और लाइफ स्किल्स जो होती है ना, वो बहुत कम लोग सिखा पाते हैं। और राइटिंग कम्युनिटी पे अपना ऐसा रहता है कि अपन राइट अप सीखेंगे, तो यहाँ पे PW ऐसा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, ये सब कुछ सिखाया है PW ने मुझे। पहले मुझे आता नहीं था, और अभी जो मेरा कमबैक है PW में, तो ये इसी की वजह से है। मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था, एक कोचिंग वाले भैया हैं, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन था, तो उनने पूछा क्या है, मैंने पूरा PW का पूरा बताया क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने बोला आप उसी में जाओ। तो तब मेरे मतलब फैमिली ने बोला कि हाँ तुम वापस जाओ। और अभी मैं रिसेंटली मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ था, तो उसका वजह से भी मतलब हो गया कि हाँ ये कर लेगी, तो इसको जाने दो फिर से, नहीं तो अभी मैं नहीं आने वाली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। नहीं अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब आपको यहीं पे रहना है और बहुत कुछ करना है। ओके, कुछ हैप्पी मोमेंट्स बताइए, आपके कुछ अचीवमेंट्स। अच्छा, मेरा सबसे पहले कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? एनिवर्सरी डे था।
एनिवर्सरी डे पे मुझे Okay. Okay. एनिवर्सरी डे था, ईमान का बर्थडे था, मोहित सर का बर्थडे था, Hmm. ये सब मतलब, और ये न्यू ईयर भी जो था उसमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये है भाई। उन लोगों ने चलो, मुझे very बर्थडे nice. बताओ, ये तो पर्सनली Hmm. अप्रिशिएट करते हैं, पर्सनल बॉन्ड रखते हैं यहाँ पे, वो मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल. Everybody likes और this. ये स्टिल तो मुझे मतलब खासियत कोई है. गिव अप करने नहीं देता, बिल्कुल. स्टिल मुझे PW कोई की गिव अप नहीं खासियत ये करने है देता कि तुम्हें नहीं खाने में। कि एक बार जो इसके साथ जुड़ गया फिर वो उससे अलग नहीं हो पाता है, कोई अलग नहीं होना चाहता है. ये हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है. So PW, profound writers, really deserves this compliment. Okay, fine. Thank you so much for sharing your experience with us. Yes, Akhilesh ji, please call out the next name, sir. Akhilesh ji. Yes, Akhilesh ji. Next name, sir. Akhilesh ji. Okay. हाँ जी मैम, हाँ जी So, मैम. हाँ जी sir. मैम Please tell me next. मैम जैसा कि नीतीश सर भी मौजूद है इस मीटिंग में, आई होप, हाँ जी sir. तो Okay. ठीक है sir. इशारा समझ के लगता है. Okay sir. बिल्कुल 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 sir. Nitish sir, good afternoon. Namaskar sir. Nitish sir, very good afternoon. Very good afternoon, And a ma'am. warm welcome. And a warm, Yeah, thank you welcome so and much. namaskar on the grand mega event of Profound Writers. आज नमस्कार बनता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम नमस्कार बोलते हैं. तो sir, my question goes to you. Sir, what kind of specific genres you prefer to write and read? When it comes to reading specific genres, so which kind of stuff you would like to read? And when it comes to write, is it the same kind or is it different? Reading and writing. Do you have some specific different choices? Well, I always believe in application of what we learned in our lives. You know, like many people usually what they do is they will stick on to single genre, they will read it, and if they want to publish any sort of books or they want to keep them on penning, they will just copy paste the matters. But I'm literally different from that kind because I literally feel bored when I am following the same things each and every day. Monotonous Yes, things sir. bore me much, and you know, it will drain my energy. So if Sure. I want to cherish love, I just go with the love genres. And sometimes, you know, we are living in the society, we are all societal animals, to be specific. So I want to develop my inter and intrapersonal skills. So for that, I will go through some books like that, like How to Win Friends, Influence People, 7 Habits of Highly Effective People. It's a huge list, you know. So usually what I do is whenever I write something, specifically blogs, I want to create much enthusiasm within the people with full of twists, plots and everything. But if the people truly read my blog till the end, whatever I learn, a message to the people, we are living in a society, we should have some morals, ethics and values to move on in life. And in a nutshell, it's all like, if my heart says to do something at that moment, I will go with it. There is no specific thing that we should confine to these things. Life is very short. Just taste each and every flavor. This is what I believe in, ma'am. Superb, sir. Superb. Excellent. Excellent. Very nice. Thank you so much, ma'am. Okay. Sir, can you just mention any sort of the best moment so far being with PW? Your best moment so far with Profound Writers till date? Best moment with Profound Writers. Like, you know, people may think that I'm lying, but every second that I'm texting with my own team, I feel that I'm creating a new memory. You know, like there would be some team meetings and sometimes I will go with individual conversations. From each and everyone, I am learning something. When you are learning something, I feel that you are burning again, you know. So, and if you ask me specifically, it's on my birthday, actually. I haven't, you know, I haven't expected the surprise on that day. Like at 12 o'clock, I got the phone call from the CEO and he's asking, Nitish,
please spare 5 minutes of your valuable time for us. Like, I came into my WhatsApp group, and they people specifically created a group for me to celebrate my birthday wishes, and everywhere, all the 24 hours, I'm getting some new messages from the people, even from the writers also. I got the messages from nowhere. I'm getting the messages from the PW team side. And besides this one, there is one day like PW grand meet. On that day, everyone, almost 108 members at that time, almost 100 people has joined the meet, and there are a couple of things we discussed, and at the end of the day they gave the feedback that how the meeting went well and how the meeting was organized, everything. Like, on those 2 days, literally I got tears in my eyes. Well, yeah, these two things are always restored in my heart like glass, I can say. Yes, sir. Very true. You are a very, I can say, the eminent and a special personality and special member of PW community. You never shirk off from your responsibilities. You are every time there with all of us, being it guiding us, being it, attaining or imparting your valuable suggestions, and imparting those suggestions and implementing those suggestions. We people keep growing. So we need always your kind guidance. And one compliment I would like to give you, sir, as I have been observing you, as you're looking great. I think you have put on your shed of some extra kgs. You're looking great, sir. Nice. Thank you so much. Looking very nice. Thank you so much. Good, good, good. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your valuable experiences, sir. Sir, anything you would like to say to all of us regarding to freedom? What is your opinion about freedom? Well, coming to the freedom, like, people will have different opinions on freedom, and I respect them. But to me, freedom is an endless territory demarcated, guarded by the morals and values. This is a quotation that I had written recently about the freedom. Freedom, like, after Britishers has left the India, many people are thinking that we got the freedom. Yeah, India got the freedom. To say few things, these things may hurt the people, but teens are having the freedom to rape someone who is walking on the roads. Parents are having the freedom to take away the freedom of their children. Entrepreneurs or the governments are having the freedom to restrict the people's freedom. Our neighbors is having the freedom to snatch our dreams. Is this called the freedom? I think no, we haven't attained the freedom. And to be frank, freedom is a boundary which we can't see with our naked eyes. We can see through the lens of the world. This is only happens when we introspect ourselves. Government can't do anything if your mindset is wrong. Government can't, like, your own people or your family members won't give you until your voice. At the end of the day, what I tell each and everyone is, you haven't attained the freedom. Freedom is something boundless territory. Even you go to the Mars, even you go to the moon, you always crave for freedom. Freedom is an element which can't be touched. So what I can tell you people is, be good and do good. Be good and do good might be a four letters of a sentence, but it will change the entire world's notions. So be kind, be grateful for everything that you are having, and don't hesitate to ask God what you doesn't have. This is what I say at the end of the day. Like, you are having absolute liberty to do anything, but what you are doing should not harm others. That is a real freedom, and that is called as utopia. And in simpler words, this is freedom in my perception, and I'm so sorry if my words has hurted anyone's perceptions. No, sir, not at all. Those are really the great words. Really good, sir. Really true. I also personally identify the words which you have said. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. So next is Priyanka ma'am. Priyanka ma'am, welcome to this mega event. Priyanka ma'am. Priyanka ma'am. Yeah, good evening. Thank you. Welcome to you too. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. And namaskar. Namaskar. For the very first time, I am just interacting with you. No problem. Virtually, we people coordinate with each other on chats, but for the very first time, I'm just having a face-to-face with you virtually. So, ma'am, so how are you feeling? Thank you, ma'am. Thank you so much. I am feeling good. How about you? Okay. I'm feeling great with you people out there. मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सब लोगों के साथ. तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि profound writers के साथ आप
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन मैम. I also Thank you. am a personal admirer of your work. आप जिस तरह से काम करते हो, it's truly commendable, मैम. तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि profound writers ने आपको as a person, as a personality कैसे affect किया है और कितना change किया है मैम आपको till date? कितना change आपने महसूस किया है खुद के अंदर? Before writing, मैं खुद एक job करती थी. So I skipped my job in 2017 due to some personal issues. उसके बाद काफी कुछ मैंने उतार चढ़ाव देखे. And one day एक invitation आया कि एक global writing community है. Would you like to join? Well, yeah, okay, let's try. Writing was, I used to write, but just for a passion. But when I joined the Profound Writers, I was very underconfident. And when Nitish sir told me to review a post, I don't mind reviewing, but people, I don't know how they will judge. If someone comment on my post, even I will feel that wrong कि हाँ बाबा कोई बाहर से उठ के रिव्यू कर रहा है, मेरी गलतियां निकाल रहा है, क्योंकि ये किसी को अच्छा नहीं लगता. But then slowly I started learning, no, this is the right way. अगर मुझे मेरी गलती नहीं बताएंगे तो मैं कल नहीं improve कर पाऊंगी. And this is how slowly I develop. And there comes a point when people used to ask me, ma'am, come for the review. Come do the review. I can't come. And when Mohit sir told me, ma'am, you are going to be a coordinator and you can't review, then I literally begged Mohit sir, at least for 2 hours, I want to review in group. At least for 2 hours. But later on, I stop. And now the journey, you all know how it's. But I personally feel to each one that don't give up. You should never give up. You should try. Every writer should try to write in different format, in different line. Even if it is a single word, try to write. Then only you can learn and you can develop. This is my personal view. Super, ma'am. Excellent, excellent. And you are really a source of inspiration for all of us. Ma'am, just dedication से आप काम करते हो, so we all love that. We all love that, ma'am. Okay. So, ma'am, on an average, means personal life में जो भी आपने profound writer से सीखा, तो personal life में कितना आपने उसको implement किया? आपकी personal life कैसे उससे change हुई है? काफी change हुई है. मतलब आजकल ना मुझे चीजों की इफेक्ट नहीं करती. If someone says anything to me, it's okay. I don't care. You be happy at your place. I am happy at my place. That's the ratio. I don't, because then what used to happen, I used to get so much emotional connect with people. Then if someone hurt me, I used to think and think and think. And then it mentally एक block हो जाता है. But after working with profound writers, I have seen that people come, people go. Yeah, I have a special bond with each and everyone, but it doesn't scares me anymore. Okay, this is a journey. One has to go, one has to come. But what I feel, if you are getting some opportunities, grab on it. Don't say no, because opportunity knocks only once at your door and not again. So if you are getting to learn something, learn it. Don't say no to it. Learn it, grab it, and go for it. Go for it. Absolutely. You will fail, but it's okay. There are people who can support you. And this is the right time that you should learn something. Great, ma'am. Very nice. I really enjoyed interacting with you. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. मुझे भी बहुत मजा आया. Thank you. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, Akhilesh ji, over to you, sir. Yes, Akhilesh ji, you would like to pose any question to any of our team members, sir? Akhilesh ji? हाँ जी मैम. Yeah, I'm here. Yes, sir. आप भी कुछ पूछना चाहेंगे हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट से? सवाल है मानिया मैम के लिए. ओके सर, पूछिए. मानिया मैम प्रकट होइए. हेलो सर. हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून. नमस्कार, कैसे हैं? हेलो. सर. हाँ जी मैम, नमस्कार. सर. कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? चलिए.
अच्छा, एक छोटा सा सवाल था मेरा, बाकी तो प्राची मैम कंटिन्यू करेंगे कि जी सर। सपोज आपके पास दो राइटर्स आते हैं, दो लोग आते हैं, एक जो पहले जी से सर। राइटिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी राइटिंग कुछ खास नहीं है, और एक जिनको राइटिंग शुरुआत करनी है, ठीक है। जी और सर। प्रॉब्लम ये है कि जिसको आती है थोड़ी बहुत राइटिंग, वो रीजनल लैंग्वेज आती है, ठीक है जी, और जिसको जी नहीं सर। आती है उसको हिंदी ही सीखनी है। तो आप दोनों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, मतलब कैसे, किसको पहले स्टार्ट करेंगे या किस तरह से सिखाना शुरू करेंगे? जैसे आती है सर तो वो मतलब थोड़े से गाइडेंस से ही वो आगे बढ़ सकता है, और जैसे नहीं आती है उसे ज्यादा गाइडेंस देकर आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, लाइक जिसको थोड़ी बहुत आती है ना, वो थोड़ा सा मेरे जैसा है। अलग किस्म का है कि नहीं सीखना है, लेकिन फिर भी सीखने की इच्छा है। बार बार बोलेंगे तो सर सीखने लगेंगे ना। अगर सीखने की इच्छा है तो कभी तो वर्क करेंगे उस पर। अगर मतलब इच्छा खुद है, अगर नहीं है तो फिर कितना भी बोलेंगे नहीं करेंगे। चलिए ठीक है फिर तो। राजू मैम शुरू करिए सवालों का सिलसिला पाने मैम के साथ। Okay, sir. Okay, sir. Manya ji, welcome. Welcome to today's grand event. Welcome. थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार। कैसा फील नमस्कार। कर रहे हो आप? कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर? ग्रेट। आप हिंदी में ज्यादा लिखते हैं, फील मान्या। संध्या यामिनी में है आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। बहुत नाम पढ़ती हूँ मैं आपका, राइट अप आता है, नीचे मान्या जैन लिखा होता है, तो अभी भी मेरे आंखों के आगे वो फ्लैश आ रहा है, मान्या जैन। So today I am virtually seeing you for the very first time and really very happy to meet you all. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। So Manya, सेम। please introduce कीजिए अपने आप को। I would like to know about your personal introduction. कुछ पर्सनल बताइए अपने बारे में मान्या। ओके सो मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। और Good. राइटिंग एक Nice. पैशन था, मतलब जब पढ़ती थी तब कभी कॉपीज के पीछे वगैरह लिख लिया करती थी। कभी ऐसे आकर लिखूंगी, डेली लिखूंगी, ये तो सोचा भी नहीं था। बट हाँ, अच्छा लगता है कि अब लिखने लगे हैं। बाकी बस डॉक्टर Good, good, good. बनना है, सक्सेसफुल लोगों की हेल्प करना है, यही इसी उम्मीद से डॉक्टर बनना है बस। Very nice, very nice. So मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा चैलेंज एक राइटर के लिए क्या होता है? कोई भी जब आप राइटर लिखते हैं तो मतलब क्या सबसे बड़ा चैलेंज आप फील करते हो बीइंग अ राइटर? जो मेरे लिए था वो ये था कि टॉपिक नहीं मिलते थे। मतलब लिखना है बट किस बात पर लिखें, किस टॉपिक पर लिखें, क्या लिखें। स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं मिलता था आपको? हाँ। तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं? सपोज आप अपना ही कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि कौन से एरिया से जहाँ पे आपको लगता था कि हाँ यहाँ पे मैं वीक हूँ, और कैसे आपने उसको इम्प्रूव? ऐसे इम्प्रूव किया, मतलब या तो स्पेलिंग्स में भी कभी बार हो जाता था, हम अपने थॉट्स को नहीं लिख पाते हैं। तो लिखते लिखते अगर आप रेगुलर लिखेंगे तो आ जाएगा आपको कैसे एक्सप्रेस करना है आपको, आपके थॉट्स वगैरह। बाकी तो अगर कुछ बोलें तो अगर लिखना है, थॉट्स हैं, तो ऐसे कोई नहीं आता है कि आपको मतलब ना लिख पाए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम लेते हैं? आप कोई भी राइटर जब लिखते हो, नाउ सपोज बैकग्राउंड इज गिवन टू यू, आपको बैकग्राउंड इज प्रोवाइडेड एंड यू नो वेरी वेल कि मुझे इस पर्टिकुलर थीम पर लिखना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है। ऑन एन एवरेज व्हाट इज योर स्टैंडर्ड टाइम टू एग्जीक्यूट दैट राइटिंग? कितना टाइम ले लेते हैं आप? अगर थॉट्स हैं तो 15 या 20 मिनट। अगर कोई लेकिन अगर कविता है, कोई पोयम है? तो अगर मतलब वो टॉपिक इजी है और तुरंत थॉट्स आ जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट। अब तक का सबसे मुश्किल टॉपिक आपको क्या लगा? इतने सारे हम लोग थीम्स पर लिखते हैं, सभी लोग, इतने सारे हम लोग को सिचुएशंस मिलते हैं,
तो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, कोई फॉर्मेट, कुछ भी जो आपको अब तक बहुत मुश्किल लगा हो, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय लगा हो और आपका थिंकिंग प्रोसेस काफी लॉन्ग गया हो उसमें, तो ऐसा कोई टॉपिक? टॉपिक तो याद नहीं, बाकी फॉर्मेट में बहुत कम ट्राई करती हूँ। न्यू जो लिखते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है, मतलब कोई भी अगर न्यू फॉर्मेट ट्राई करना उसमें टाइम लगता है। हम्म। आपने सोनेट लिखा है कभी? 14 लाइंस का जो सोनेट होता है, हैव यू एवर ट्राइड दैट? शायद इंग्लिश में लिखा है, ऐसे याद नहीं। Okay. Apogee group is the best group if I tell my personal experience. So Nitish sir approached me one fine day and he just told me to add to just join that group and I joined that. तो इतना अच्छा ग्रुप लगा मुझे वो, क्योंकि अपोजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि रियली दे पॉलिश यू इन ऑल द पॉसिबल फॉर्मेट्स। उसमें इतनी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं और हम लोग स्ट्रक्चर पहले उसका प्लान करते हैं, फ्रेम प्लान करते हैं, then we execute that. Lot of thinking processes involved, lot of mental processes involved, then finally you are able to give your best. So मुझे एकदम से वो ध्यान आया, that is why I asked you. Okay, Manya, any other thing you would like to share with us? कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नो मैम। Okay. Thank you so much. Thank you so much for being here, for speaking with us, for interacting, for sharing with us. तो मैं ये सोचती हूँ, अखिलेश जी और हमारा ही आइडिया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवेंट के लिए कुछ दिन पहले, कि Yes. ऐसे राइटर्स जो हमेशा बैक स्टेज रहते हैं, जिनका हमें पेन नेम पता है, जिनका हमें लेजिटिमेट नेम पता है, जिनके हमें राइटअप्स पता है, इनका हमें क्वालिटी पता है, बट कभी वो लोग सामने नहीं आते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है, कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो स्पेसिफिकली हमने यही नोशन को सोच के इस इवेंट को आज प्लान किया है एंड इट इज गोइंग ग्रेट सक्सेस, और वो सक्सेसफुल हो भी रहा है। आप सब लोग आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड। थैंक यू मान्या सो मच फॉर बीइंग हियर। Okay, so next, voluntarily anybody would like to come ahead to share the views, or do I have to call out the name? अमन जी हैं यहाँ पर, श्रेया जी हैं, I can see, and someone is there with Redmi. I don't know who is it. Can you please tell your name? Someone is there logged in as Sai Redmi. sir, ma'am. Who is it? Sai sir. Utsai sir. Okay. अभिषेक सर की बात कर रहे हैं आप? Yes, ma'am. Abhishek. Abhishek. Okay. Abhishek sir ji, very good afternoon, sir. Can I request you to be there on the video mode, sir? Okay, this Abhishek ji. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, can I have you on camera? क्या है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, Okay, sir. मैं It's okay. हाँ, तो मैं It's ट्रैवलिंग में okay, sir. It's हूँ। okay. Right. मेरा सिंपल सा सर, यही था, मैं नमस्कार। 2 ही मिनट लेने की कोशिश करूंगा कि नमस्कार, जय कोई हिंद। बात नहीं सर। यूजुअली मेरा पेन नेम जय नमस्कार, हिंद ही है। जय हिंद। ओके, फाइन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा अच्छा इवेंट आज का प्लान शॉर्ट टाइम पे जो प्लान किया गया है, अच्छा इवेंट है, वेल प्लान। लेकिन वही है कि थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो इट वाज सो इंस्टेंट। अच्छा सर। लेकिन अच्छा है, कुछ चीजें नीतीश की मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा था इतनी देर से, नीतीश की, प्रिया की, और इसके बाद प्रियंका जी की, फिर रिसेंटली मान्या की भी। तो बेसिकली पीडब्ल्यू का जो इवेंट था, जो पीडब्ल्यू का ज्वाइनिंग का प्रोसेस थी, वो बिट सरप्राइजिंग थी, और उसके बाद से जो सरप्राइजेस शुरू हुए हैं वो आज तक खत्म नहीं हो रहे। तो एंड आई डोंट वांट देम टू एंड as soon as it should be executing. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राइटिंग इज माय ब्रीदिंग। मुझे लिखना बहुत ज़्यादा इकलौता मेरा काम है जो आई लव टू यूज़, कि बस वही करता रहूँ। और इसके कारण बहुत सारे लोग मुझे इसी चीज़ से जानते हैं कि कुछ भी लिखता हूँ, इट्स ओके, समटाइम ग्रामर नहीं है, कुछ कई बार वर्ड्स नहीं है, बट या आई यूज टू राइट। आप लिखो, लिखकर आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, एक ना एक दिन आप सीख जाओगे। तो लिखते आना चाहिए, एक्सप्रेस करते आना चाहिए।
और बाकी सब बिल्कुल चीजें सर, बिल्कुल सेकेंडरी सर। हैं। अब रही बात फ्रीडम की या कल के दिन के लिए, तो आई डोंट फील कि फ्रीडम को एक दिन सेलिब्रेट किया जा सकता है। हाँ, इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो केवल ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको हर बार ये याद दिलाया जाए कि आप फ्री नहीं हुए हैं, अभी आपको फ्री होने की जरूरत है। और यदि आप फ्री हैं, आपको लगता है आप फ्री हैं, तो आप दूसरे लोगों को हेल्प करें फ्री होने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिल्कुल जिनसे सर। कि हम फ्री हैं और नहीं भी हैं। जैसे कि आई फील दैट आई एम फ्री, बट समवेयर आई वांट that I don't want to be free, like from the parents side, like from education side, from writing side, I don't want to be free. कुछ चीजें हैं जिनसे हम फ्री होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, जैसे कि मॉनेटरी टर्म्स में जॉब कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ फ्रीडम हमें चुननी पड़ती हैं, कुछ फ्रीडमों को एंजॉय करना है, और कुछ फ्रीडम जितना जल्दी ले लिया अच्छा है। जैसे कि कुछ लोग चाहते नहीं है कि लिखे लेकिन लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। या कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने ग्रुप्स में भी देखा है, शेयर करना चाहते हैं, बीच में भी मेरी कई बार चर्चा हुई है कई लोगों से कि हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको वो फॉर्मेट नहीं पसंद। जैसे कि आपने देखा होगा आधुनिक जो काल चल रहा है जिसमें राइटिंग का प्रोस आया था 1960 के बाद, जो इप्टा है या जो IPWA है, इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स चंद जी ने शुरुआत की थी, और कुमार विश्वास जी ने भी इस पे चर्चा की थी कि लिखने में सबसे कठिनाई जो आती है वो आती है जब आप प्रोज में लिखते हो, जब आप राइमिंग में लिखते हो, क्योंकि हमारे पास भाव होते हैं लेकिन हम उसको बांध नहीं, मैच करने में दिक्कत आती है। और इस कारण कई बार कई लोगों को दिक्कत होती है जो लोग फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। तो इसका सीधा सीधा सा सिंपल ये, यहाँ पे भी फ्रीडम काम करता है में लिखिए। कुमार विश्वास जी से जब मैं 2017 में मिला था तो उनका एक ही चीज कहना था कि यार अभिषेक, जब आप लिख रहे हो ना तो जस्ट फील फ्री। आप जब फ्री फील करते हो ना तो आप अपने थॉट्स को लिखो, क्योंकि कविता में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप उसको बांधने की कोशिश करो। जैसे हम लोग लिखा करते थे जब शुरू में, तो मैं उर्दू हिंदी मिक्स करता था, तो उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आप हिंदी हिंदी में लिखो तो वो ज्यादा बेहतर आएगी, आप उर्दू उर्दू में लिखो तो वो ज्यादा बेहतर आएगी। इससे आपको भाषा की पकड़ भी बनी रहेगी और वो फ्रीडम जो है लैंग्वेज का या राइटिंग का वो बना रहेगा। उसके बाद हमने सीखा धीरे धीरे, और थिएटर में थे तो थिएटर में हमारे नसीर साहब थे, नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने कहा था, जब हम लोग उनके साथ 2014 में वर्कशॉप करते थे तो उन्होंने कहा था कि यार राइटिंग तो वही है जो फ्री लिखी जाए, क्योंकि क्या है राइटिंग मतलब आपके थॉट्स को आप बांध नहीं सकते। जब आप थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो तो जैसे आ रहे हो आप उसको वैसे लिखो। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में मुक्तक कविताओं का ज्यादा वो बढ़ा है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। फ्री स्टाइल राइटिंग जो है वो, फ्री स्टाइल राइटिंग, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री स्टाइल राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और मैं भी, आपने देखा होगा यूजुअली मैं इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि मुझे मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही मिल पाते हैं लिखने के लिए, और मुझे सिर्फ बीजी मिल जाए, मुझे टॉपिक मिल जाए, और यदि मैंने वो देख लिया तो मैं सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में ही लिख पाता हूँ। तो 1-1.5 मिनट में मुझसे फ्री स्टाइल ही हो पाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में और फॉर्मेट में ट्राई करने की और प्रिसाइज लिखने की। और फिलहाल के लिए क्या है, मेरी बैटरी भी ड्रेन हो रही है और मैं अभी बफर जोन में जाने वाला हूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही। सभी को हैप्पी कोई इंडिपेंडेंस नहीं डे। सर, जय हिंद। बस आपको भी, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट और लूंगी सर। मुझे जी अभी जी भी जी याद है जी व्हेन आई न्यूली जॉइंड प्रोफाउंड राइटर, आपको याद होगा मेरा जी ग्रुप था चंद्रानी ग्रुप, आपको याद है सर? चंद्रानी ग्रुप में थी मैं, तो उसमें कभी भी मुझे कुछ सजेशन चाहिए होता था तो आपसे मुझे मिलता था, और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन किया करती थी मैं आपसे, और बहुत सपोर्ट मिला सर। पहली बार मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू यू सर। आपको थैंक्स कहना चाहूंगी, बहुत सपोर्ट मिला मुझे आपसे जब मैं उस ग्रुप में थी। आप रिव्यू करते थे मेरी पोस्ट को, मुझे सजेशंस देते थे, और आई गॉट अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for sparing your precious time to us. Okay. So, next I would like to coordinate with Shreya ji. Am I audible to everyone? Yes, am I audible, Shreya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. 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 So, how are you feeling here? Very warm welcome to today's mega event. Very excited since yesterday. Since Okay. Akhilesha posted in group,
and it was worth waiting. It was worth waiting. Okay. Fine, fine, fine. So Shreya, again, you are a very well recognizable name. I know you all people with your names. मैं आप सबको आपके नाम से ही जानती हूँ. So I don't know about me, whether you know me that way or not, but I know you all. So you're looking very pretty in white outfit. you. Me too. I'm also dressed in white. Loving to be dressed in white every time. So Shreya, how is your journey so far with Profound Writers since you started till date? Yeah, actually, I started as a writer in Crescent Group, and then I was promoted to Glorious as volunteer. And I was not ready to Okay. accept that I should review others' posts because I'm still a learner. But ma'am said that you should try. We have many young writers like you who review, and then I took a step. But yes, it was amazing opportunity. Since then I only grow every day by in my own writings. When I tell the writers their mistake, then I find it in my own writings. I also commit those mistakes, but I never I have never paid attention to it. So then I was promoted to Quora head, and as a overall there is a overall growth in me. My confidence increased. I started talking to people over chats and coordinating everything, like team leading all this. Okay. So would you be liking to share more about Quora, this platform, with all of us? What is it all about, and how all new people Yeah, can we join have. it, and what is the operations of Quora actually? Yeah, right now we are answering every type of questions on Quora. You will find everything related to writings, the formats you have to try, the things you have to keep in mind while trying different formats, some grammar rules. And recently we started posting writing Gyan also on Quora. So we start a series currently homonym series is going on. So homonyms are really confusing, and we try our best to help you. The Irtika ma'am make very difficult words that always confuse writers. So, and we are starting with the Raksha Bandhan contest also on Quora, and hopefully it will go amazing. Okay. So would you like to share more on this contest that is upcoming? Yeah, This it's Raksha a Bandhan, between on the the occasion of special Raksha Bandhan. special bond between the brother, which is also close to everyone's heart. So I think the topic is very beautiful, and the language we decided is English, and it will be based on content and the number of upvotes you will get. And we have many Okay. prizes for something for everyone who will participate. So no one will go Okay, so empty-handed. content is the selection of the content is criteria is different, and the public this fan following is different, or it is a club kind of a thing 50% when it content comes to and judging. 50% upvote. Okay, fine. Okay, so what kind of particular write-ups you love to read? Any I particular write kind of stuff you love poetries, to read? and I love to read mystical stories and suspense or horror stories. Okay, fine. Have you ever come across any spooky thing in your real life? Any supernatural, any paranormal activity in your real life, or have you you might have listened from some of your acquaintances, some of your friends in your school time, college time? Have you come across any such incident No, in your real life? no. Okay. Would you ever like to face it? Would you ever like to face it? Yeah, I like horror things, like sitting in dark and thinking about ghosts and all that. Like, Okay. Have you ever tried writing some spooky things? Have you written any sort of yeah, horror stuff in your writings? I've read horror stories which were Okay, provided fine. in group. I especially wait for the day when horror story format is given, so I can pen something. Okay, good.
Fine. Any other thing you would like to say? You would like to communicate I will to write all the new writers? I will write to share my one writer for Independence Day. May I? Yes, yes. Why not? Please, please. It is dedicated to the freedom fighters and our army and all the armed forces. So, to the unsung heroes of our country, to the pride of our nation, your sacrifices are beyond our imagination. You are the ones who fight and die. Though you might not be able to save the world, but at least you try. You happily give your life for your beloveds and are always prepared to face the troubles. Sometimes residing in the harshest reason, you perform your duty, and that enhances your uniform's beauty. We have no words to thank you for the pain you take. We cannot even imagine the sacrifices you make. Leaving behind all the comforts and pleasure, you devote your whole life for a nation, and we owe you for this dedication. That's it. Excellent. Super, super. Great. Very nice thoughts you have. And beautifully penned, beautifully written, beautifully expressed, beautifully articulated. So my all best wishes to you, Shreya, for the upcoming journey of yours with Profound Writers and in your personal life too. All the Thank best. you. All the very best. All the very best. Thank you so much. Yes, Abhishek ji. Sorry sir, आपसे बीच में कनेक्ट एकदम टूट गया था. अभिषेक जी, are you there? अभिषेक जी. जी जी जी, बोलिए बोलिए. ओके. तो सर उस टाइम मैं आपको ये कह रही थी कि जब मैंने चंद्रानी ग्रुप ज्वाइन किया था, सो मुझे बहुत सपोर्ट मिला आपसे. आपको याद है सर कितना मैं परेशान करती थी आपको व्हाट्सएप पे? Do you remember? इसके लिए भी available है. जी बिल्कुल बिल्कुल. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जब आप स्पेसिफिकली हिंदी में लिखते हैं, और आपका जो पेन नेम है उत्साही, इट इज वेरी नाइस. बहुत अच्छा नाम है, और कई ग्रुप में मैंने आपके राइटअप्स पढ़े हैं. मुझे अच्छा, वो मुझे आप एक सर उत्साहित ने रहते दिया हैं? था, क्योंकि यूजुअली अच्छा. हाँ, उन्होंने एक सर है मेरे साथ काम करते थे, हम लोग जब एचआर थे काम करते थे, उनके फादर ने, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे तक काम नहीं करता रहता था, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया था कि यू आर लाइक अ रनिंग रैबिट. तो इसलिए उन्होंने पेन नेम दिया था, तब से मैं इसी पेन नेम को यूज कर रहा हूँ, और होना भी चाहिए. आई बिलीव कि आपको लाइफ मिली है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो यू शुड यूटिलाइज इट. तो यदि आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं सोने में, व्हाट्सएप चलाने में, वीडियो देखने में और इन सब चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, तो वेस्टेज है. तो इससे अच्छा है कि आप उसको इन्वेस्ट कीजिए. तो बस. और मैं तो लिखने की कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता है तो कभी कभी लंबा लिख लेता हूँ. बीच में मैं लॉकडाउन के टाइम पे बीमार था बहुत ज्यादा, तब मैंने लिखे थे कुछ राइटअप्स जो मैंने पूजा को भेजे थे पर्सनली, क्योंकि अभी हम लोग इतने लंबे राइटअप्स लिखते नहीं है उस पे, हम लोग के व्हाट्सएप वगैरह पे, और मेरी आदत नहीं, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 2-3 पार्ट उसके बना पाऊँ. तो मुझे इंस्टेंट टाइम मिलता है कि जैसे भी 5 मिनट के लिए मैंने व्हाट्सएप देखा, टाइम हो रहा है तो मैंने चलिए लॉग इन किया, वो आपका बीजी डाला, और यूजुअली आपने देखा होगा मेरे वर्ड्स का फॉन्ट भी सेम रहता है, क्योंकि मैं उसी में इमेज में ऐड करके टेक्स्ट ऐड करके उसी में पेस्ट कर देता हूँ. तो मेरा फॉन्ट भी सेम है, जबकि कई बार इर्तिका ने मुझे इंसिस्ट भी किया है थोड़ा अच्छा लिखते हैं उसको बस फॉन्ट और डेकोरेट करके लिखें. मैंने कहा यदि इतना ही टाइम मिल जाए तो मैं तो क्या बताऊं. और प्लस मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं 95% फ्री रहता हूँ. तो आयशा भी कई बार कह चुकी है कि ब्लज तो जिंदा ही आपके लिए है. एक बार जब हम लोगों ने ब्लज में रिकॉर्ड तोड़ा था, जब 3 to 1 पोएम आई थी, तो उस बार हम लोगों ने 350 पोस्ट किए थे रात भर में, जिसमें मैंने 220 प्लस पोस्ट किए थे रात भर में. तो अच्छा है, लिखना चाहिए. और सबको सर आपके तो मल्टीपल पोस्ट आते हैं सर. नहीं, मेरा तो मानना है सबको लिखना चाहिए. गुड, बहुत बढ़िया. वही एक फ्रीडम है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. सर ये तो पक्की बात है. एक राइटिंग ही ऐसी है जहाँ चीज कुछ ऐसे लाइफ के ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग खुल के सामने नहीं आ पाते, हम लोग दब जाते हैं, हम लोग बाउंड फील करते हैं. राइटिंग ही एक ऐसा रीम है जहाँ पे हम खुल के सामने आते हैं और अपनी उन सारी चीजों को जो सप्रेस हो चुकी हैं खुल के एक्सप्रेस कर देते हैं. सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों एंटी चीजें होती हैं. आर्ट का सबसे बड़ा वेपन फ्रीडम टू एक्सप्रेस.
हाँ, और आर्ट का सबसे Writing. बड़ा वेपन माना गया राइटिंग को, क्योंकि आप पेंटिंग में बहुत कुछ दिखा सकते हो लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वो समझाना पड़ता है, उसके एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन राइटिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह, तो उसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस बिल्कुल कर सर। सकते हो। तो मेरा मानना है वो सबसे बड़ी फ्रीडम है, और पीडब्ल्यू के कारण वो फ्रीडम आज लगभग हर भारत के अंदर तो ठीक है, वर्ल्ड में भी लगभग मैक्सिमम जगह पे धीरे धीरे पहुंच रही है, और आने वाले दिनों में हम सबके एफर्ट से ज्यादा पहुंचेगी। बिल्कुल सर। अब तो हम पब्लिकेशंस के थ्रू जाएंगे, अभी तक तो हम जा बिल्कुल रहे सर, थे केवल बिल्कुल। व्हाट्सएप के थ्रू, बिल्कुल सर। यूट्यूब के थ्रू, अब हम पब्लिकेशंस के थ्रू लोगों को एनक्रोच करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम सबके गुड विशेस हैं एक दूसरे के साथ, प्रोफाउंड बिल्कुल। राइटर्स के साथ, सब दूसरे एक दूसरे को थाम के साथ चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो करते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इतने खूबसूरत व्यूज के लिए। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। ओके ओके, चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। ओवर टू यू अखिलेश जी। यस अखिलेश जी। हाँ जी सर। मैम। हाँ जी सर। सर आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं या विल यू बी टेलिंग? जरूर। आप कुछ नाम कॉल आउट करेंगे? अमन जी भी हैं यहाँ पर, अमन जी हैं, प्रगति जी हैं। सर आपका कोई सवाल प्रगति जी से, अमन जी से? We have got Aman, we have got प्रगति। मेरे पास नहीं है, फिर भी एक बार ना प्रगति मैम से यस सर। प्रगति मैम। प्रगति मैम, कैन वी हैव यू हियर? प्रगति मैम, कैन यू लिसन? प्रगति मैम। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, अमन सर से पूछते हैं। अमन सर। अमन, कैन वी हैव यू हियर? अमन, Yes, अमन, ma'am. कैन वी हैव यू? जी अमन जी, गुड Yes, आफ्टरनून। कैन वी हैव यू ऑन? अमन जी, अमन जी, very good afternoon. Good Warm afternoon. welcome to you to our event. Can I request you to come on the video mode if possible? अमन जी। मैम वीडियो ऑन करने से ऑडियो भी क्लियर नहीं आएगी। कोई बात नहीं सर, as you feel comfortable, जैसा आपको लगे comfortable. No issues sir. Yes अखिलेश जी। सर। अमन जी is here. हाँ जी हाँ जी, अमन सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे सर, बाकी प्राची मैम आपसे पूछेंगे। जी पूछू सर? जी सर बिल्कुल। सर तो मेरा सवाल ये है कि आपने जब प्रोफाउंड राइटर्स के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तो आप अपने लाइफ के कौन से फेज में थे कि आपने सोचा कि प्रोफाउंड राइटर्स ज्वाइन करना चाहिए? यस मैम, एक्चुअली मैं उस वक्त क्लास 10th में था ओके। और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ स्टडी करते करते स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, तो सोचा राइटिंग के बारे में फिर सोचा, उधर इंटरेस्ट उधर आया, तो फिर एक दिन वही प्रोफाउंड राइटर से इनवाइट आया, फिर ज्वाइन कर लिया। अमन, see, I would like to suggest you one thing. आप मुझे बहुत डाउन लग रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। I feel बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है आपको। So please don't feel like that. खुल के बोलिए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए जो भी। हमारा तो टैगलाइन है express to inspire, inspire to express and express to inspire. So inspire this, express yourself fully and openly. So अमन, किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? क्या पढ़ते हैं हम exactly? Please tell us. Yes, Aman. Adventure story books. Okay. And what particular thing you would like to write? When it comes, आप अगर हर राइटर का एक सपना होता है, वो फेमस होना चाहता है, अच्छा लिखना चाहता है, आप क्या लिखना चाहते हैं स्पेसिफिकली? कौन सा जॉनर लिखना चाहते हैं? राइम्स। राइम्स आप लिखना चाहते हैं? ओके, फाइन। सो एनी ऑफ द, आपने मतलब कितना टाइम हो गया आपको प्रोफाउंड राइटर्स के साथ? इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रोफाउंड राइटर्स? अमन? 8 months. अच्छा, 1 महीना। ओनली 1 month?
No, ma'am, 8 months, 8. 8 months. Okay. So, any of the achievements that you have taken or achieved so far in Profound Writers? आपकी कोई winning post होगी, कुछ भी आपने अलग-अलग competitions में लिखा होगा, तो सबसे अच्छा experience क्या रहा आपके Profound Writers के साथ? What is the best experience so far here with this community? PW anniversary. Yes, Aman, your voice is not that clear. Please come again. PW, Please दोबारा बताइए. PW anniversary. Okay. तो कुछ ज्यादा और बताइए उसके बारे में. आप वहां पर थे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अच्छा लगा आपको, क्या क्या हुआ तो उस एनिवर्सरी में, क्योंकि मैं तो फ्रैंकली नहीं थी उसका एक पार्ट, तो आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू. थोड़ा बताएं मुझे अमन उसके बारे में थोड़ा सा कुछ. यस अमन. मैम वो एक्चुअली एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था पूरे पीडब्ल्यू के लिए, जस्ट क्योंकि वो 1 ईयर हो गया था पीडब्ल्यू का, इसलिए वो एक अलग फीलिंग थी. चलिए बहुत बढ़िया. अमन, वुड यू लाइक टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो आप, कुछ भी नो जो आज तक शायद मौका नहीं मिला, कुछ बोला नहीं, कुछ भी बोलना चाहते हो? नो मैम. Okay, Aman, thank you so much for being with us. Thank you so much. We are blessed to have you all here today. Thank you so much. Other person is there with whom I have not interacted. कोई भी इस meeting में. Akhilesh, now are you free? Can I interact? मेरे ख्याल से Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज लैग हो रही है सर. सब फिर से बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि शायद मैं ही बचा रह गया हूँ. हाँ, एक आप बच के और एक मैं बच गई हूँ. ओके, चलिए सर. तो सर आप मुझे बताइए आपका जर्नी के साथ. आपने आज राइटर स्टार्ट किया एंड टुडे यू आर यूट्यूब हेड. आज आप यूट्यूब हेड हैं. तो सर ये जो ट्रांजिशन है, ये जो जर्नी है, सो प्लीज सर शेयर, कुछ बताइए इसके बारे में. अखिलेश जी. वेलकम आपको भी. बिल्कुल सर, नमस्कार, वेलकम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. एक सेकेंड. हाँ जी, अब सही है. मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर मैम? बिल्कुल सर. नमस्कार. ऑरेंज टी शर्ट में नजर आ रहे हैं आप मुझे. खैर मैम, एक चीज बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी आपने पूछी, तो मैं तो वही इतना बताऊंगा कि 22 जुलाई को, यानी मेरा बर्थडे बीतने के बाद मैंने ज्वाइन किया था. वो कैसे ज्वाइन किया, ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मेरी बहन जो है बहुत अच्छा राइटिंग करती है, हमारे पीडब्ल्यू के साथ जुड़ी हुई है, एक राइटर है वो. आप लोग शायद अनोखी के नाम से जानते होंगे. तो उसने बोला कि घर पे आ, मतलब प्रोफाउंड राइटर्स में लिख, ये लोग अच्छा बैकग्राउंड देते हैं, अच्छा टॉपिक्स देते हैं, इसमें लिखेगा तो शायद तेरी राइटिंग और एनहांस हो सकती है और अच्छे से लिख सकता है. तो मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या फर्क पड़ता है. तो उसने, मेरी बहन ने मुझे मोहित सर का नंबर दिया, एचआर सर का, एंड साथ ही साथ मुझे आदित्य सर का नंबर मिल गया. तो एचआर सर से बात हुई मेरी, मोहित सर से बात हुई, सर ने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको ऐड कर दूंगा. उन्होंने मुझे अगले दिन ग्रुप में ऐड कर दिया और फिर मेरी आदित्य सर से भी बात हो गई. और मतलब मैं मेरे आने का जरिया सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरी बहन, मोहित सर और आदित्य सर. एंड देन कुछ दिन तक मैंने राइटिंग करी. मैं विनर भी था, किसी में मैं थर्ड आ गया, किसी में सेकंड आ गया, किसी में फर्स्ट आ गया. तो मतलब वीकली जो होता था उसमें भी मैं विनर हुआ था एक आध बार. उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे, और अचानक से एक दिन एक आर्टिकल आता है ग्रुप में कि जिसको भी वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन या कुछ आता है तो मैसेज करे. तो मैंने मेरी बहन से पूछा कि मतलब व्हाट यू से. तो उसने बोला कि यार तेरे को आता है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. फिर यही बात हुई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक और बार ट्राई कर देते हैं.
तो मैं बोला कि चलो एक बार तुक्का मारते हैं कि 6 जाए चाहे 4 जाए चाहे 2 रन मिल जाए। तो और मैंने तुक्का मारा और मेरा सिक्सर लग गया। तो फिर मैंने मतलब मोहित सर से बात करा एडिटिंग के बारे में। तो सर ने बोला कि सर आपको कैसी एडिटिंग आती है। तो मैंने अपना चैनल का, मेरा जो पर्सनल चैनल था उसका मैंने सर को लिंक भेजा और मैंने फिर कुछ वीडियोस उनको सर को बना करके भेजे। तो सर ने बोला ठीक है सर, तो आपको ये ऐसा ऐसा ये करना है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि सर मुझे कंटेंट्स देते थे और मुझे मैं एडिट करके सर को भेजता था अपलोड करने के लिए। कुछ दिन तक ये चला। उसके बाद मैं सर ने मुझे कंटेंट्स भेजने लगे और मैं ही अपलोड करने लग गया एडिट करके। और फिर धीरे 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 कुछ ऐसा मतलब बीच में मैं गायब भी हो गया था मेरे एग्जाम्स और मेरे कैंप की वजह से। एंड देन फिर मैं वापस ज्वाइन हो गया, मतलब वापस से जिंदा हो गया। तो जब मैं वापस जिंदा हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो गया था अंदर। तो मैंने बोला अच्छा यार ये तो मतलब पता नहीं था। फिर मैं पीडब्ल्यू टीम में भी ज्वाइन हो चुका था और मैं बहुत कुछ देख रहा था। एंड देन धीरे धीरे जब मैं सब कुछ करने लग गया तो फिर अचानक से मुझे सर ने बोला कि सर आपको चैनल का हेड बनाया जा रहा है, प्रोफाउंड राइटर्स यूट्यूब चैनल के हेड हो गए आप। तो आपको ये पदवी दी गई है और होप आप अच्छे से संभालेंगे उसकी, मतलब अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तो मैं तो मतलब ये सोच रहा था कि यार एक चैनल तो मेरा चला ही रहा था, साथ ही साथ इतना मस्त चैनल मिल गया है और इतने सारे मेंबर्स हैं, बहुत खतरनाक वाला बढ़ेगा एकदम, मतलब आग ही लगा देने। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने मेरी बहन से बात किया, मैं बोला बहना चल एक इतना बड़ा चैनल है तो इसको लेके जाना है, वहां तक लेके जाना है जहां मतलब कोई सोचा नहीं होगा इस चैनल के बारे में। तो मैंने फिर सर्च करा कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं यूट्यूब पे और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कितने नए नए तरीके से हम वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं। पर साथ ही फिर मुझे ऐसा लगा कि एडिटिंग के साथ साथ मैं अपने राइटिंग में लैग करने लग गया था। तो मतलब मैं लिखना कम कर दिया था और मैं एडिटिंग में ज्यादा फोकस कर लिया था। फिर मैंने बोला कि नहीं, लिखना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरुआत तो लिखने से ही की है। तो जैसा कि मैं लिखता हूँ अगर, तो मैम मेरे को ना लिखने के लिए कोई जरिया या कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी बाइक से जब चलाते हुए आ रहा था तो मैंने अचानक से कुछ सोचा और मैंने कुछ लाइंस लिख दिए थे। मतलब मन ही मन में मैंने कुछ सोचा और मैंने कुछ छोटी सी लाइंस लिख दी और मैंने तुरंत फोन निकाला, गाड़ी साइड में लगा कर मैंने लिख दिया। मैं बोला कि यार भूल जाऊंगा मैं, इससे अच्छा लिख दूं कहीं पे। तो मेरे को लिखने के लिए जरिया नहीं चाहिए कि लाइक मतलब कुछ होते हैं जो गम में डूबे होते हैं, कुछ होते हैं खुशियों के बारे में लिखते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत लिखते हैं, कुछ दोस्ती लिखते हैं, कुछ परिवार लिखते हैं, कुछ क्रिटिक्स लिखते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़े बड़े शायरों को भी सुनता हूँ और मतलब बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस देखता हूँ। तो उन सब से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। कभी कभी तो कुछ समझ में भी नहीं आता और फिर बाद में उसको समझने की कोशिश करें तो समझने लगते हैं। तो थोड़ी बहुत कोशिश करते 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 खुद को करते हैं कि मतलब किस तरह से बढ़ा सकेंगे, क्योंकि बहुत अलग अलग जो टॉपिक्स आ जाते हैं कभी के ग्रुप में, और मैं कुछ ग्रुप्स मैं भी संभालता हूँ जिसमें मुझे भी टॉपिक देने हैं। तो मैं जो लिखता हूँ उनमें से ही मैं समझता हूँ कि अच्छा ऐसा टॉपिक देंगे तो सही रहेगा ग्रुप में। साथ ही साथ जो मुझे टॉपिक मिलते हैं लिखने के लिए, तो तब भी मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा ये कुछ नया है, लिखेंगे, मजा आएगा, ट्राई करते हैं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने यही सोचा और फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। एंड ट्रायल्स बिकम सक्सेसफुल। ट्रायल्स ही जो होते हैं वो सक्सेस में कन्वर्ट होते हैं। प्रॉमिस कभी सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रायल ही सक्सेस में कन्वर्ट होता है, जब आप पूरी पॉजिटिविटी देते हैं और अपना डेडिकेशन उसको देते हैं। ओके, चलिए, बहुत मजा आया सर सुन के आपकी जर्नी। सर कोई पर्टिकुलर जॉनरे पसंद है आपको, लिखना, पढ़ना, कोई भी पर्टिकुलर जो आप मेंशन करना चाहेंगे? मैं जो मतलब पढ़ना तो मुझे साइंस फिक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। फिक्शन स्टोरी जो होती है, क्योंकि मैं जो वेब सीरीज और स्टोरीज भी देखता हूँ या मूवीज देखता हूँ तो मैं वैसे ही देखता हूँ, वही जॉनर्स की। और लिखने में अगर मैं बोलूँ तो मैं 90% तो मैं ब्रोकन हार्ट लिखता हूँ। मतलब सैड पोएम्स और मतलब जो सैड रोमांटिक्स होते हैं वो जॉनरा लिखता हूँ। कभी कभी थोड़ा सेम है सर, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी वही लिखती हूँ, पेन उठाती हूँ अपने आप वही निकल के आता है।
और फिर थोड़ा थोड़ा मैम रोमांटिक जॉनर चला जाता हूँ, फिर पता चलता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसको सैड बना देते हैं, फिर और मजा आ जाता है। नाइस, वेरी नाइस। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको अभी तक आया, फेस किया आपने इन राइटिंग, एज अ राइटर, जो आपने फेस किया सबसे बड़ा चैलेंज, वो कुछ बताइए। मैम एज अ राइटर मैं सोचता मेरे लिए तो पहली बात तो चैलेंज ये था कि जब मैंने देखा कि यार कोई स्टोरी लिखनी है और 250 वर्ड्स में ही लिखनी है, तो एक तो पहली बात मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैं बोला कि यार 250 वर्ड्स में कोई स्टोरी कैसे लिखूं मैं। फिर कंफ्यूजन मेरा समझ में बाद में आया कि मैं किस बात के लिए कंफ्यूज था। मैं कंफ्यूज इसलिए था कि इसको छोटी लिखनी है कि बड़ी लिखनी है। अब क्योंकि स्कूल में मैम जब 10वीं की एग्जाम थी, 10th की एग्जाम थी, तो उसमें मैंने हिंदी की एक स्टोरी लिखी थी जिसमें मैंने 4 पेज भर दिए। और तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं 250 वर्ड्स की लिख रहा हूँ कि 500 वर्ड्स की लिख रहा हूँ। अच्छा। एंड देन मैं इसमें सोचा कि मैंने ठीक है बस लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मोबाइल में लिखते हैं, 250 वर्ड्स पता चल जाएगा और वहीं पे रुक जाऊंगा। फिर मैं लिखते लिखते मैं मैं मतलब 700-800 वर्ड पार कर गया और कहानी मेरी खत्म नहीं हुई थी। मैंने बोला यार अब कैसे कहानी खत्म हुई, तो मैंने वो टॉपिक मतलब उस टॉपिक के हिसाब से मैं नहीं चला। मैंने बोला कि ये स्टोरी मैं खत्म करता हूँ। और मैम मैं आपको बता वो स्टोरी मेरी आज तक की सबसे बड़ी स्टोरी है। मैंने लिखा था, मैंने वो टाइटल बता देता हूँ, और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ उसको वो पब्लिश करने के लिए, वो बुक उसकी मैंने 11 पार्ट्स लिखे हैं। लेट्स सी मैं उसके आगे वेरी गुड। उसको उसका नाम है लॉकडाउन वाला प्यार। वंडरफुल, टाइटल इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन वाला प्यार थोड़ा बहुत इस लॉकडाउन पे है और थोड़ा बहुत मतलब मेरी कुछ इमेजिनेशन है, थोड़ा कुछ अलग है, थोड़ा कुछ स्टोरी है। तो मैंने कुछ सोचा और मैं लिखना शुरू हो गया। मैं बोला कि 250 वर्ड्स नहीं, 2500 नहीं, 20,000 30,000 जितने वर्ड्स बने देखते हैं कितने बनते हैं। और फिर मैंने वर्ड्स काउंटिंग छोड़ दिया और मैं वो कहानी लिखने शुरू कर दिया। तो मुझे ऑलमोस्ट 11 पार्ट्स लिखने में ज्यादा से ज्यादा मुझे एक महीना लगा होगा। तो मैंने एक महीने में बहुत बढ़िया। अब और एक वेरी नाइस। जिसपे मुझे मैं एक चीज शेयर करूंगा मैम, मैं ब्लैक शर्ट में कुछ ज्यादा अच्छा लगता हूँ। भले इसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लैक शर्ट में ज्यादा अच्छा लगता हूँ। इसलिए नहीं पहनता मैम कि मेरी मम्मी का भी कहना है कि ब्लैक पहनने से मुझे नजर लग जाती है, क्योंकि पहले भी लग चुकी है। मैं मतलब एक बार ब्लैक पहन के बाहर गया था और मैं घर आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मम्मी ने बोला कि ब्लैक मत पहनना, इसलिए मैंने पिछले दिवाली पे ब्लैक शर्ट ना लेकर के दूसरा एक ब्लू एंड व्हाइट टी शर्ट ले लिया, क्योंकि मतलब वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो भी मैं नहीं पहनता इसीलिए क्योंकि ज्यादा अच्छा लगता हूँ। वो कहते हैं ना मैम कि भले कोई मतलब प्यार करने के लिए मिले ना मिले, खुद से प्यार करना आ गया ना तो बस काफी, उतना ही काफी है। वो सबसे बढ़िया होता है, वो सबसे अच्छा होता है। बस मैम तो सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप दूसरों को भी तभी प्यार करेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की अहमियत को आप पहचानेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। बस वो ईगो में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो ईगो नहीं बनना चाहिए। तो ठीक है सब, चलिए बहुत बढ़िया। वो स्टोरी था, तो मैंने बोला ठीक है, एक दोस्त है। और फिर मैंने कुछ कैरेक्टर्स अपने हिसाब से इमेजिनेशन से जोड़ दिए, कुछ नाम मैंने अपने दोस्तों के कुछ दूसरों के चुरा लिए और एक स्टोरी उस पर भी लिख डाली। लेकिन ब्लैक शर्ट मैंने दो जॉनरा में लिखी है, वो स्टोरी का नाम ही मैंने ब्लैक शर्ट रखा है। और मतलब एक मैंने रखा है कि लाइक एक सैड रोमांटिक है और एक फ्रेंडशिप और रोमांटिक है। तो उसमें थोड़ा ज्यादा मैंने फ्रेंडशिप को ज्यादा बढ़ावा दिया है दूसरे वाले में। किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। So we are definitely looking forward for that. बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं, डेस्परेटली वेट करेंगे आपके बुक्स आए, आपके पब्लिकेशंस के थ्रू आए आप हम सबके सामने अपने अच्छे राइटअप्स लेके, अपने अच्छे बुक्स लेके। ओके सब, पर्सनली अगर मैं पूछूं तो आपकी लाइफ की जो मेन फिलॉसफी है वो क्या है, क्या सोचते हैं लाइफ को कैसे जीना चाहिए? मैम मैं ये सोचता हूँ ना कि पहली बात तो जैसा कि 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरा मानना है कि भारत आजाद हो गया है। पर बहुत सी चीजें, जैसा कि अभिषेक सर ने भी कहा, कि बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम आजाद होना ही नहीं चाहते हैं। ऑब्वियस बात है। जैसे कि मैं एक मेरा नेचुरल फैक्ट बताता हूँ कि मैं अगर कभी कैंप जा रहा हूँ या कभी कहीं भी जाता हूँ ना,
मैं अपने फादर के बिना रह सकता हूँ, मैं अपने बहनों के बिना रह सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता। मैं कैंप गया था, 3 महीने लगातार मेरा कैंप था। मेरे को इतना मतलब वो लगने लग गया था कि मैं मम्मी से मतलब कुछ ज्यादा ही दूर हो गया हूँ। और ज्यादा दूर नहीं था, मैं अलग स्टेट में था, लेकिन मैं इतना सोच रहा था कि मम्मी से थोड़ा ज्यादा दूर हूँ मैं। मेरे को घर जाना है, घर जाना है। तो ये मेरे मन में हमेशा ही चल रहा था। तो मैम मैं वो एक हमेशा ये रहता है ना कि मैं उस चंगुल से कभी मैं फ्री होना नहीं चाहता हूँ। और ये मैं अपनी मम्मी को भी बताता हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले अपना ये बर्थडे पे मतलब एक वीडियो भी शेयर करा था, सोशल मीडिया स्टोरी पे डाला था, मैंने पोस्ट नहीं किया है अभी तक वो। मैंने बिल्कुल। अपनी मम्मी के साथ डांस किया है। अच्छा। और वो डांस जो है, वो डांस मैंने एक वेब सीरीज में देखा था। तो वो डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ओके। मम्मी से बोला कि करने का है। और मैंने ऑन द स्पॉट डांस किया, और मम्मी को डांस जरा भी नहीं आता, लेकिन मम्मी ने इतना अच्छा डांस किया है कि मतलब वो लग ही रही है कि मेरी परफेक्ट पार्टनर है। तो मम्मी तो परफेक्ट पार्टनर होती है बेटे की। आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई सन। तो बेशक। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग टॉम एंड जेरी सीरीज देखते हैं और पेट पे हाथ रख रख के हंसते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। सर कुछ कहना चाहेंगे? जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ भी। मैं एक चीज कहूंगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं एक जो फ्रीडम का है, दूसरा चीज मैं बताया नहीं कि पहली बात है ना, इंसान को अपने जीवन में, अपने लाइफ में ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती चाहिए। कि जैसे आपको अगर कुछ करना है या कुछ नहीं भी करना है, तो भी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। वो मेरे एक Agreed. सर थे, दिनेश सर, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। वो एक फ्रेज कहते थे, बोलते कि मतलब जब हम लोग टेस्ट देते थे या कुछ करते थे ना, या कुछ बात कर रहे हैं लेक्चर के बीच में, तो सर बोलते थे कि ध्यान दे दे, पढ़ ले, नहीं तो फेल होना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब ये था ना कि फेल होने के लिए भी तेरे को मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस मैम कि आपको अगर 35 से ऊपर लाना है, तब तो आप कुछ भी करके लेके आ सकते हो, लेकिन आपको फेल होने के लिए अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप एग्जैक्टली 35 या 36 लेके आ जाओ, या फिर आप अगर एग्जैक्टली 35 भी लाना चाहते हो ना, तो भी नहीं ला सकते, वो एक नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो मैं मानता हूँ ना कि आपको कुछ भी अचीव करना है या कुछ नहीं भी अचीव करना है, तो भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे नहाते धोते हैं, 9 बजे जिम कर रहे हैं, 10 बजे वर्कआउट खत्म हो गया है, ड्रिंक जो भी अपना प्रोटीन शेक पिया, खाना खाया, और 10 बजे से अपना शुरू कर दिए। तो वो भले आपका टाइम टेबल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कि आपने सोच लिया 7 बजे उठना है, मतलब उठना है। भले आप रात को 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, लेकिन आप अपने शेड्यूल से ना हटें। क्योंकि आपने यही सोचा था कि मैं अगर 7 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 10 बजे तक इतना कंप्लीट कर लूंगा, रात के 10 बजे तक। लेकिन आप अगर 7 बजे नहीं उठते हैं, 7:30 बजे उठते हैं, तो आपका पूरा का पूरा दिन का शेड्यूल आधे घंटे लेट हो जाता है। तो रात को आपने अगर सोच लिया कि 2 बजे सोना है, तो आप 2:30 से 3 बजे सोओगे, तो आपको जो 3 घंटे की नींद मिलने भी वाली थी, वो भी नहीं मिलेगी। ऐसे तो जनरली फैक्ट जो है वो 7 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में लोग 7 to 8 आवर्स को 3 to 4 आवर्स कर दिए हैं, एकदम ही आधा कर दिए हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक तो पहली बार डिसिप्लिन, दूसरा अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं भी ध्यान देता हूँ, प्राची मैम खुद ध्यान देते हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर पे ध्यान देते हैं। नीतीश सर बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ आवर पीडब्ल्यू। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जब सेहत ठीक रहेगी, तभी गांधी जी आ पाएंगे। सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तभी गांधी जी आ पाएंगे। सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए मैं भी दिन में 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ। आज सुबह नहीं गई हूँ, शाम को जाऊंगी। 2 hours तो आपको करना है वर्कआउट। एंड you have to rock in your life. Being healthy, staying healthy is very very important, extremely important. Sure sir, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। खैर मैम मेरा So तो I hope सबके साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा तो बात हो गया, बाकी सबकी भी बातें हो गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, और बाद में जब आप मेरे से मिले तब कैसा रहा? फैंटाबुलस। दोनों चीज जो आपने पूछी बहुत ही बढ़िया रहे। मुझे भी एक इनवाइट आया था, योर कोट ऐप पे मैंने लिखना स्टार्ट किया।
and I had been writing since my childhood. और अपना मेरा एक छोटा सा डायरी है. जब मैं क्लास 6th में थी तब मैंने वो डायरी में अपना पहला राइटअप लिखा. वो मेरे पास अभी भी है सर. आप इमेजिन करो, मैं क्लास 6th में थी, वो डायरी मेरे पास अभी भी है. क्या बात है. और उसके बाद when I turned 12 years of age, जब मैं 12 साल की हुई, and I was a very introvert kind of a person, दो आज मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, तो बहुत ही पब्लिक स्पीकिंग रहता है मेरे प्रोफेशन में. एंड आई हैव नो स्टेज फियरेंस, नो कैमरा फियरेंस, मुझे कुछ नहीं है. आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट. बट मैं जब छोटी थी तब ऐसा नहीं था. तो मैं सब कुछ अपनी बुक और अपनी डायरी से बात करती थी. ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था मेरा. आई हैड क्वालिटी फ्रेंड्स, सिर्फ 2 या 3, वो भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए. तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अलोन एंड आई वाज अ बुक वॉर्म. हमेशा किताबों में रहती थी मैं, बहुत पढ़ती थी, दिन में 16 घंटे पढ़ाई करती थी. एंड आई वाज अ टॉपर इन माय क्लास, इन माय स्कूल, सब जगह. जूल ऑफ द आई ऑफ माय टीचर्स, सब लोग जानते थे. बट डायरी एंट्री जब मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग. एंड प्रोफाउंड राइटर्स आल्सो, इट्स बीन हार्डली 6 to 7 months, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. बट आई फील एज इफ आई हैव बीन विद यू पीपल, विद यू ऑल फॉर years. मुझे लगता है मैं सालों से यहाँ पर हूँ और मेरा पुनर्जन्म यहाँ हुआ है. दिस इज द फैक्ट. आई एम रीबॉर्न एज प्राची विद प्रोफाउंड राइटर्स. और मैं क्या बोलूं प्रोफाउंड राइटर्स के लिए. क्या बात है. I have taken my third birth. First birth when I was born from my mother's womb, जब मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दिया था. Second birth when I became a mother, जब मैं खुद माँ बनी, वो मेरा second birth था. And third birth when I joined Profound Writers, ये मेरा तीसरा जन्म है. So I love Profound. सर बहुत बड़ी बात है और ये सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है. क्योंकि मैंने सब लोगों से पूछा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई प्रोफाउंड राइटर्स के साथ जुड़ने के बाद. क्योंकि मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है प्रोफाउंड राइटर्स के साथ. मैं सिर्फ यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ. I have grown, I have evolved as a person, and lot of positivity I have gained. Just like प्रियंका मैम ने जैसे बोला, तो बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि पहले वो बहुत ज्यादा एंशियस रहते थे, उनको सबकी बातों से हर्ट होता था. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि now I am me, I believe in myself being here. मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ अपने हार्ड वर्क में, अपने काम पर. जब मुझे पता है मुझे ये काम करना है तो मुझे करना है. आई डोंट सी एनीथिंग. मैंने आज अपना सारा मॉर्निंग क्लासेस पोस्टपोन किया शाम के लिए, अपना जिम पोस्टपोन किया, बहुत सारी चीजें पोस्टपोन की. मुझे पता है मुझे करना है और इससे मुझे खुशी मिलती है और एक अच्छा काम है. आप सब कुछ लाइफ में पैसे से नहीं माप सकते. सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता. कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए होती हैं, कुछ अच्छे कॉज के लिए होती हैं, ह्यूमन कॉज के लिए होती हैं, सोसाइटी के लिए होती हैं. तो वो आपको उसके लिए अवेलेबल रहना है और एक जिम्मेदारी के साथ रहना है. जैसे जब हमने मैंने इवेंट जब ये स्टार्ट किया था, बोलना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सब फ्री हैं एज राइटर्स. हम सब लोग फ्रीडम से अपने राइटअप्स लिखते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. बट वी शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर राइटिंग टू. उसमें एक जिम्मेदारी लेके हमें चलना चाहिए कि जैसे नीतीश सर ने भी बोला कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना भी नहीं चाहिए. और इट्स वेरी बैड बीइंग अ ह्यूमन. आप किसी को कैसे हर्ट कर सकते हो. तो मेरा जर्नी प्रोफाउंड राइटर्स के साथ बहुत अच्छा है. मुझे और बहुत सारे राइटिंग कम्युनिटी से इनवाइट्स आते हैं, ओपन माइक से, पता नहीं कहाँ से, प्लीज मैम ज्वाइन अस. मैं कहीं ज्वाइन नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करती हूँ. प्रोफाउंड राइटर्स, I can say that I see myself into profound writers like a mirror, and I am growing each passing day. मैं हर दिन यहाँ पर ग्रो कर रही हूँ पॉजिटिविटी से और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ. This all I can say. So this is my third birth and my permanent birth. क्या बात है मैम, क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. इतनी और किसी की. Thank you so much. तो मैम खैर आपसे तो कुछ सवालें मेरे पास तो है नहीं. आपने तो हर चीज बता दिया. मैं चाहता हूं कि अभी खैर कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया हम लोगों ने, बाकी लोगों का भी. तो मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी प्लीज अपना वीडियो चालू कर लीजिए
लास्ट हम मीटिंग एंड करेंगे लास्ट नेशनल एंथम से। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सो मच प्रोफाउंड राइटर्स। और आज के दिन के लिए मैं सभी को बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सभी आज के मीटिंग में प्रस्तुत हुए। आज के गेट टुगेदर में आप लोग सारे लोग प्रेजेंट थे, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स टू आवर CEO सर, डॉक्टर रणधीर सर, MD सर, नीतीश सर एंड HR सर, मोहित सर, कि आप लोगों ने ये आज इतना बड़ा इवेंट जो है पॉसिबल कर पाया। बिग थैंक्स टू प्राची मैम, आपके वजह से आज का पूरा इवेंट सक्सेसफुल था। मैं तो बीच में गायब भी था बट मैंने थैंक यू सर, थैंक यू सबकी बातें सुनी, नीतीश सर, प्रिया मैम, मान्या जैन मैम, तो मैंने सबकी बातें सुनी है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मजा आया आज तो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के साथ वापस से और ही ज्यादा बड़ी क्राउड के साथ मुलाकात होगी। तो प्राची मैम, इसी के साथ आज का मीटिंग एंड करने की बिल्कुल सर, सोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। बस जाने से पहले मैं एक बार फिर सबसे पूछना चाहूंगी, कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी एमिनेंट मेंबर कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कह सकते हैं, उसके बाद हम फिनिश कर सकते हैं इस मीटिंग को। सर नीतीश सर, ओवर टू यू सर। Yeah. Well, to be frank, you know, when something is organizing in PW, definitely people will have lot many expectations, and as holding some sort of position in PW, I too have many expectations. Frankly speaking, whatever the expectations that I kept, you surpassed this one. You know, Prachi ma'am has nailed the hosting, and Akhilesh sir, you know, like getting the people here, making them sit for more than 1 hour is not an easier task for any common man, but you people just took our eyes and heart, and you people made us to sit and amused all the time, you know. Definitely, it's like a worth attending session actually. And the very first thing, I'm grateful to be the part of PW, and I'm very thankful and grateful for you people for inviting me to this meeting and making me the part of this meeting. Thank you so much. Yeah. Once again, I would like to thank all of the participants present in this meeting for imparting their precious and valuable time and for sharing their genuine reviews, their experiences, their journey with Profound Writers community, and for inspiring the new writers, the new joinees who have recently joined Profound Writers. And it's been a great honor in lieu of this occasion, at the 75th Independence Day. We are having this virtual get-together event. So again, from the bottom of my heart, on behalf of the entire PW team, Profound Writers team, I would like to extend my thanks again to all present here. Thank you so much, and I hope you all might have enjoyed this event today in great terms. Thank you all of you, and namaskar. Jai Hind.